हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 सितंबर असाइनमेंट पॉलिटिकल साइंस का देखेंगे, राजनीति विज्ञान का। तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरे 5 क्वेश्चंस जो हैं उसको पॉइंट वाइज कैसे लिखना ये बताया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आप लोग इसी को सेम चाहें तो अपने कॉपी में लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नॉन अलाइंड मूवमेंट हैज़ बिकम इररेलेवेंट नाउ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? गिव 4 आर्ग्यूमेंट फॉर सपोर्टिंग योर आंसर्स। तो ये आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का हिंदी में यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। द स्टेटमेंट दैट NAM हैज़ बिकम इररेलेवेंट टुडे इज नॉट करेक्ट. The reason for it are as given below. NAM contains some core values and enduring idea. It is based on recognition that decolonized state or newly independent state of Asia, Africa, Latin America share a historical affiliation and can become a powerful force if they come together. It means that the poor and very small country need not become followers of any of the big power that could pursue an independent foreign policy. NAM is based on a resolve to democratize the international system. It provides an alternative world order to readdress the exciting inequalities. With the emerging neocolonialism, use of economic, culture or other pressure to influence former colonies, mainly newly independent nation were unable to take concrete decision in economic field due to pressure exerted by the powerful nation or organization like World Bank, WTA, TO and IMF, etc. Under such circumstances, NAM can come forward to help this country in time to asserting their economics right. So we can say the above core ideas are still relevant today. तो यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि अपना 4 आर्ग्यूमेंट्स लिखिए। यहाँ पर गिव 4 आर्ग्यूमेंट फॉर सपोर्टिंग योर आंसर्स। तो ये 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं और ये इसलिए हमने इसको सपोर्ट करने के साथ पे ये लिख लिया। और ये देखिए यहाँ पे हिंदी में भी ये पूरा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जिसको मैं ये देखिए दिखा देती हूँ आप लोगों को। हिंदी में भी ये पूरा दिया हुआ है, ये देखिए। तो इसे भी आप पढ़ के समझकर हिंदी में भी लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द नेचर ऑफ कोल्ड वॉर एनी 4। ये यहाँ पे इसका क्वेश्चन का हिंदी में भी लिखा हुआ है। द नेचर ऑफ कोल्ड वॉर आर एज फॉलोज। इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द US एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव रैलीज. इट वॉज ideological war between the superpower. It triggered off an arms race. The US and USSR were engaged in indirect war. ये कोल्ड वॉर में एक्चुअली में हुआ क्या था, ये आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे कि जो USA और USSR है उन लोग के बीच में एक्चुअल में वॉर नहीं हुई थी। मतलब एक तरीके का वॉर जैसा, लड़ाई जैसे छिड़ गई थी लड़ाई, ऐसा बोलते हैं, वो हुआ था। यही उसके 4 यहाँ पे मेनली नेचर्स दिए हुए हैं कोल्ड वॉर का। तो ये देखिए ये कोल्ड वॉर का यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट में हिंदी में भी ये देखिए समझा दिया है, जिसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज शॉक थेरेपी? वॉज इट द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम कम्युनिटिज्म टू कैपिटलिज्म? Shock therapy was a painful process of transmission from an authoritarian socialistic system to a democratic capital system. This transformation system was influenced by the World Bank and IMF in Russia, Central Asia and East Europe, though it varied in intensity and speed among the former Second World country, but its direction and features were quite similar. This was not because to make a transmission from communism to capitalism due to following drawbacks. Russia, the largest state-controlled industry complex, lost about 90% of its industry through sales to private individuals and companies. It created the largest garbage sale in history, which led virtual disappearance of entire industry. Further restructuring was carried out by market force in place of government-owned policy. Hence, industry were unwrapped and sold at throwaway
prices is systematically destroy old system of social welfare. The value of ruble, जो रशिया की करेंसी है, declined drastically due to high rate of inflation, and real GDP of Russia also declined between 1989 to 1990. The withdrawal of government subsidy pushed large section of society into poverty, and it emerged mafia to start controlling many economic activities. Privatization lead to dispensary which divide disparities, which divide Russia between rich and the poor people, creating economic inequality. Hence shock therapy brought ruin to economics and disaster upon the people of entire region. तो ये आपने देखा शॉक थेरेपी के बारे में, जहाँ पे रशिया में इतनी बड़ी क्राइसिस आई थी, वहाँ पे बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन आया हुआ था, जिसके वजह से पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और वहाँ पे रहने वाले लोगों पे क्या इफ़ेक्ट हुआ था, पूरे मतलब मैक्सिमम स्टेट्स, मतलब वहाँ पर जो भी सिटीज़ थी वो पूरे मतलब पावर्टी में जा रही थी बहुत ज़्यादा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो ये शॉक थेरेपी का यहाँ पे हमने हिंदी में भी ये समझ लिया है। ये देखिए हिंदी में भी मैंने इस पॉइंट को लिखा हुआ है। अब इसमें एक बात ये पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट दिया हुआ है, तो आप उस वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग 75 से 100 के बीच में लिखा है, तो इसमें ज़्यादा पॉइंट्स लिखे, तो आप चाहे तो कुछ पॉइंट्स को कम कर सकते हैं। ये ऐसे ही सेम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अगर आप इसे देखेंगे तो आप इसे पॉज करके वीडियो को यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं और इसको अपने कॉपी में इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं राइट एनी 4 रीज़न। फोर्थ क्वेश्चन, राइट एनी 4 रीजन्स फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। 4 reasons for disintegration of Soviet Union are as follow. Internal weakness of Soviet political and economic institution failed to meet the aspiration of the people. The economic of the Soviet Union became stagnant. The Soviet economy used to use much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal. The Soviet Union too became stagnant due to rampant corruption, the unwillingness to allow more openness in government, and the centralization of authority in the vast land. A section of the society was not happy with the form of Gorbachev. It was decided that reform introduced by Gorbachev were at a very low place. Another reason for the collapse of USSR was the rise of nationalism and the desire for sovereignty within various republics including Russia and the Baltic Republic. तो यहाँ पे देखिए 4 reasons लिखा हुआ है डिसइंटीग्रेशन का, सोवियत यूनियन का, तो हम यहाँ पे कोई भी 4 लिख सकते हैं। और यहाँ ध्यान रखिए, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ हिंदी में भी, तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने हिंदी में भी इसको पूरा समझा दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, और इसी को ही अपने कॉपी में सेम एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इंडिया एक्सेप्ट नॉन अलाइंड policies, give 4 reasons. India accept non-aligned policy because of the following reason. India want to develop mutual respect for each other's territorial, industrial and sovereignty. India want mutual non-aggression and non-interference in domestic affairs. India want equality and mutual benefit. India want peaceful coexistence. तो ये था कोल्ड वॉर नॉन अलाइंड पॉलिसीज़ के कि क्यों इंडिया ने एक्सेप्ट किया था नॉन अलाइंड पॉलिसीज़, और इसी के 4 ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा था। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, कोई 4 लिखना है आपको, तो इसी तरीके से वो हिंदी में लिखा था, तो ये रहा इसका आंसर जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो आप एक बात ये ध्यान रखेंगे कि जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके वो सब 4-4 मार्क्स के हैं। अब जब 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो आपको इस तरीके से लिखना है कि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाए। अगर आपको फुल में फुल मार्क्स चाहिए, क्योंकि ये जो आपका असाइनमेंट है ये इस महीने का असाइनमेंट है, इसके अगले महीने भी फिर असाइनमेंट आएगा, और हो सकता है कि इस असाइनमेंट का मार्क्स आपका फाइनल एग्ज़ाम में जुड़े या जो भी रहे कंडीशंस वो तो आपको बाद में पता चलेगी, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये अगले 6 महीने इसी तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले हैं वो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे इस तरीके का असाइनमेंट। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं क्लास 12 का और सब्जेक्ट का भी वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी तो टाइम है, आज तो सिर्फ 3 तारीख ही है, तो आप लोग इतना हड़बड़ाइए मत। और मेरा जो ब्लॉग है उसका भी मैं लिंक हर चैनल अपने वीडियो के नीचे में दे दिया करूँगी, तो आप वहाँ से जाके जो सेक्शन बना हुआ है वहाँ से भी देख सकते हैं। क्लास 12 और 10 के इंग्लिश और हिंदी मीडियम के वीडियोज़ वहाँ पे ब्लॉग में मिलेंगे आपको। अभी मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझा रही हूँ, ब्लॉग में भी अपडेट करूँगी, तो लिंक डाल दूँगी नीचे में वीडियो के कमेंट के नीचे।